علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت نمبر 85 اور 86 سورہ البقرہ ہے۔ اسلام مکمل دین حیات ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے بیان نہ کی، اور چیز موجود ہے۔ آپ کو ایسی چیز نکال کے دیکھیں جس کا حل یا جس کے بارے میں اسلام نے نہ بیان فرمایا ہو، اور چیز اللہ نے کھول کھول کر بیان فرما دی قرآن کے اندر۔ پہلی آیتوں میں، اس سے پہلے 84 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ زمین میں خون نہیں بہانا۔ خون ریزی بہت بری حرکت ہے، انسانوں کو رسوا کرنا، خون بہانا، انسانوں کو آپس میں لڑانا۔ فرمایا میں نے تمہیں اس بات سے روکا تھا، پھر تم وہی نکلے۔ تم نے فتنہ و فساد بھی پھیلایا، غریبوں کو مارا، غریبوں اور مستضعفین کو تم نے قیدی بنایا۔ فرمایا میں نے تمہیں روکا تھا۔ اسلام ہر طرح کی دہشت گردی سے انسانوں کو روکتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو رہا تھا، ان کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو اس دروازے کے پاس، میں ذرا گھر میں جاتی ہوں، گھر کے میں دیکھ کے آتی ہوں کوئی کام شام میرے تو لے کے میں کام کر کے آ جاؤں گی، تم یہاں دیکھنا عمر بن عبدالعزیز۔ غلام کیسے ہے، میں دروازے میں کھڑا ہو گیا، میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ہاتھ یوں آنکھوں پہ رکھا، ایک منہ پہ رکھا، قرآن شریف کی آیت پڑھنے لگا اور کہنے لگے تمہارے کتنے خوبصورت چہرے ہیں، نہ انسانوں جیسے ہیں نہ جنوں جیسے ہیں، تمہارے کتنے خوبصورت چہرے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ آیت پڑھ رہے تھے تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا ہم نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے تیار کیا جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، جو زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، اور انجام کار متقین لوگوں کا ہی اچھا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ تو اسلام کسی کو نہیں کہہ سکے تم بڑے ہو وہ چھوٹا ہے، تم بڑے ہو وہ چھوٹا ہے۔ اسلام وہ دین حیات ہے کہ اسلام نے چھوٹے آدمی کو بڑے آدمی کے برابر کھڑا کر دیا، غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق کے برابر کھڑا کر دیا، حضرت عمر کے برابر کھڑا کر دیا، سب محمود یاد ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ اسلام میں بلا وجہ تفوق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس زمین زیادہ ہے وہ بڑا آدمی ہو، ایک آدمی کے پاس کارخانے میں بڑا، نہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت کرنسی تقوی کی کرنسی چلے گی، جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوں گی، اس کے محلات بنے ہوں گے، جس نے جہاد کیا ہوگا بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ آخرت میں کامیابی کا راز، عزتوں کا راز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نافرمانی کرتا رہا، بدماشی کرتا رہا، لوٹتا رہا، چوریاں کرتا رہا، فسق و فجور کرتا رہا۔ فرمایا ہم نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے بن جائیں۔ فرمایا نہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے۔ تو یہ فساد والی دہشت گردی کو اللہ نے بہت بری طرح کچلا، بہت ناپسند اس کو ظاہر فرمایا۔ فرمایا ملعون ہے ذخیرہ اندوز جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ فرمایا جس وقت تاجر مدینے میں آئیں، آپ مت مدینہ کے بازار چھوڑ کر باہر چلے جائیں، 3 میل 4 میل باہر چلے جائیں، وہاں جا کر آپ ان سے سامان خرید لیں۔ نہیں، فرمایا مدینے میں آئے، مدینے کی مرکزی مارکیٹ میں آئے، وہاں سے آپ خرید و فروخت کریں۔ میں ملعون ہے وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، سب سے بدترین وہ شخص ہے جو ریٹ کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کو سخت ترین عذاب دے گا۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہم ریٹ بڑھاتے ہیں،
हम कौमों की दौलत को लूटते हैं, हम गरीबों को पामाल करते हैं, मुस्तज़अफ़ीन को पामाल करते हैं। आज ये मुआशरा है, ये जानवरों हैवानों का मुआशरा है। एक वक्त था जिस वक्त मैं कहता हूँ कि बगैर जिहाद के, बगैर क़िताल के, मुकम्मल कुव्वत के इजहार के बाद मुसलमान कहीं दुनिया में इज्जत हासिल कर सकते, बगैर कुव्वत के, ताकत के इज्जत हासिल नहीं कर सकते। इज्जत हासिल करने का एक ही तरीका है, बातिल के खिलाफ, झूठे के खिलाफ, कज़्ज़ाब के खिलाफ, जो फ्रॉडी है, मुफ्तद है, बेईमान है। जब तक हम उनके खिलाफ मुतहर्रिक नहीं होते उस वक्त तक दुनिया में तब्दीली नहीं आ सकती। एक वक्त था अफगानिस्तान में, अफगानियों ने कुर्बानियाँ दी, मार मार कर भगा दिए रूसियों को, बहुत मारा, वासले जहन्नम किए। फिर मुसलमान ज़ेरे ताब आ गए, दहशतगर्द बन गए। अमेरिका ने एक अपने लिए फार्मूला बना लिया, जो इससे हटेगा वो दहशतगर्द है। फिर बेचारे दहशतगर्द बने। उसके बाद फिर एक मुसलमानों पर वक्त आया, मुसलमान लड़े अफगानिस्तान के अंदर, वो मुजाहिद बन गए, दलेर बन गए, बहादुर बन गए, जरूरतमंद बन गए। इस्लाम का एक ही मेयार है, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, जो मुफसद है वो मुफसद है, जो कातिल है वो कातिल है। ये नहीं एक वक्त कातिल अच्छा हो, एक वक्त कातिल बुरा, ना। मेयार हमारे पास मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेयार दहशतगर्दी का, बदमाशी का, अय्याशी का इस्लाम देता है कि जो इससे हटेगा वो ये है, जो ये काम करेगा वो ये है, इस्लाम उस पर मुकम्मल दफात इम्प्लीमेंट करता है। तो ये कि अल्लाह फरमाता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यहूदियों से फरमाया कि तुमने ऐसा नहीं करना, गरीबों को नहीं मारना, गरीबों का इस्तेसाल नहीं करना, उनको उनके घरों से नहीं निकालना। फरमाया जब तुम ये हरकत करते हो, फिर तुम फिदिया लेकर, जिजिया लेकर उनको छुड़ा लेते हो, उनको ज़ेरे बाहर रखते हो कि हमने तुमको छुड़ाया, हमने तुमको छुड़वाया दुश्मन। ये यहूदियों के शुरू से यही करतूते हैं कि वो सपोर्ट भी करते हैं अपनों की, कैदी भी बनाते हैं, उनको अपने चुंगल में रखते हैं। और इस्लाम क्या करता है, कमजोर को इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में देता है। इस्लाम उन लोगों को फरमाया कि तुमने मेरी ये बातें तो ना मानी, तुमने बदमाशी की, दहशतगर्दी की, तुमने लूटा, लैसा अलैना फिल उम्मीयीन, तुमने कहा हम गरीबों को लूट लें, इनको क्या पता, ये लाइलम है, हम गरीबों को जितना लूट ले उतना ही अच्छा है। ओ तुमने तो गरीबों का माल अपने लिए हलाल किया, तुम तो वो लोग के ला यअलमुना इल्ला अमानिय्यह, तुम अपनी ख्वाहिशात को जानते हो। तुम कहते हो चीनी महंगी कर दें, गंदम महंगी कर दें, आलू महंगा कर दें, प्याज महंगा कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें। तुमने इस इस्लाम के बेहतरीन निज़ाम को, सिस्टम को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल लिया है। तुम क्या समझते हो इस्लाम? फरमाया कि अफ़तुमिनुना बिबादिल किताब व तकफुरुना बिबाद, तुम बाद बातों को मान लेते हो जो तुम्हें सूट करती है। हमारे यहाँ एक है मजहबी तबका, एक है सियासतदानों का तबका, एक है जिनका मुल्की मैशत पर पूरा तसल्लुत है। मजहबी तबका लोगों को अपनी तरफ खींचता है, हुक्मरान तबका लोगों को अपनी तरफ खींचता है, जो असहाबे सर्वत हैं वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। इनमें हर एक तबका कोशिश ये करता है कि माल खींच ले, माल खींच ले, माल खींच ले लोगों से, लोगों को बेवकूफ़ बनाते। फरमाया अगर तुम ऐसे ही करते रहे, बाज़ बातों को जो तुम्हारी फेवर में है, बाज़ चीज़ों को जो तुम दस्तूर अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेते हो, तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम किसी लड़के को लड़की कह दो, लड़की बन गई, लड़के को लड़की बना दो। ये तुम्हारी मलून जमहूरियत है। एक तरफ असेंबली कानून पेश कर रहे, वो ला कानून वो कानून बना सकती। मैं हैरान हूँ देखकर, ये मलून तबका है, मलून तबका, ये इस्तेहसाली तबका है, ये कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक डालता है। जबकि कानून तो अल्लाह ने हमको दे दिया और रसूल ने दे दिया। फरमाया किसी का इस्तेहसाल ना करो,
झूठ न बोलो, किसी पर ज्यादती न करो, सच गवाही दो, हर शख्स को तरक्की के मौके बराबर दे दिए। फरमाया तुम वो बातें तो मान लेते हो जो तुम्हें सूट करती हैं, जो तुम्हें जिनसे तुम्हें फेवर मिलती है, वो सिस्टम तो तुम अपना लेते हो। फरमाया तुम इस्लाम के सिस्टम को क्यों नहीं अपनाते, पुराने उसी सिस्टम को जो अल्लाह ने तुमको दिया तुम्हारी जिंदगी में, कि तुमने अपने आप को इस सिस्टम और निज़ाम के मुताबिक ढालना है। फरमाया याद रखो, फरमाया कि मैं यफ़अल ज़ालिका, फरमाया जो ये काम करता है तुम में, फरमाया उसके लिए दुनिया की जिंदगी बड़ी रुस्वा कौन जिंदगी है उन लोगों के लिए। आज मुसलमान सबसे ज्यादा रुस्वा है, सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे पिटे हुए, सबसे ज्यादा मुसलमानों का गोश्त पोस्ट नोचा जा रहा है। इस वजह से हमने 5 चीजों को मान लिया, हमने इस हुक्म को ही माना, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमने 5 चीजें इस्लाम की ले ली, बाद हमने दुनियादारी की ले ली, हमने गोल्ड जिंदगी गुजारी दुनिया में, बिल्कुल जहाँ गए हम वैसे ही बन गए। फरमाया कि यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत का दिन आएगा, सख्त तरीन अज़ाब में तुमको मुब्तला किया जाएगा। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम काम करते हो, जो तुम लूट मार करते हो, जो तुम कत्ल गारत करते हो, जो तुम कौमों की इज्जत को लूटते हो, कौमों के दीन को बर्बाद करते हो, कौमों के अखलाकियात को बर्बाद करते हो, इंसानियत को पामाल करते हो, इंसानियत की तौहीन करते हो। फरमाया कि अल्लाह इससे गाफिल नहीं है, अल्लाह को इन तमाम करतूतों का इल्म है, एक एक चीज़ का अल्लाह पाक को इल्म है, अल्लाह इस चीज़ से गाफिल नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के बारे में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की लौंडी बकरियाँ चराने के लिए गई, एक भेड़िया आया, भेड़िए ने एक बकरी को कान से पकड़ा, उठा के गायब हो गया। वो लौंडिया कर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहती है, जनाब एक बकरी को भेड़िया पकड़ के ले गया। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने थप्पड़ मारा खैर लौंडी के मुँह। साथ ही सुहाबी रसूल थे ना, साथ ही रिक्कत कलब तारी हो गई, एहसास हो गया कि मैंने गुनाह किया है। तो कहते हैं मैं इसको अल्लाह के लिए आज़ाद करता हूँ, मैं इसको अल्लाह के लिए आज़ाद करता हूँ। और जब मरोगे तुम्हें इस्लाम नसीब नहीं होगा, याद रखो। फिरौन जब मरा, अल्लाह से कहता कि आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा के रब के साथ, हारून के रब के साथ ईमान लिया। अल्लाह ने कहा अलान वक़द असैत, ओए अब तुम ईमान लाते हो, अब तुम्हारे ईमान की मुझे ज़रूरत नहीं है। जिब्रील ने बार कार मुंह के अंदर मट्टी डाल दी। ओ बेईमानो, आखिरी वक्त अल्लाह ताला तो तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा, तुम्हारी माफ़ी गुंजाइश माफ़ी की नहीं निकलेगी जिस वक्त तुम मर रहे होगे। मरने से पहले तौबा का दरबार खुला है, तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। अरे वडेरों ने वो जलील किया है हमारे मुल्क को, वो रुस्वा किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमसे पहले कौमें हलाक हो गई जिन्होंने इंसाफ का एक मेयार नहीं रखा। हमारे यहाँ इंसाफ देखकर मेरे ख्याल इंसानियत भी हैरान दंग रह जाती है। बड़े को ऐसा इंसाफ मिल जाता, लो जी तुमको हमने माफ किया, तुमको हम छोटे बेचारे जेलों के। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी तुम्हारे ऊपर बीमारियां मुसल्लत करेगा, ऐसी नागहानी आफतें आएंगी कि तुम्हें अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं छुड़ा सकेगा। जैसे हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के पंडित, हिंदुस्तान के मुतासिबीन अल्लाह की गिरफ्त में है, अल्लाह की गिरफ्त, रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, इस्लाम के झंडे बुलंद कर रहे हैं। अरे तुम्हारे ऊपर भी ये वक्त आने वाला है, उस वक्त आने से पहले तौबा कर लो। जितना हमारे यहाँ ज्यादा पावरफुल शख्स है उतना ही वो बदमाश है। आप चले जाए इदारों में, रिश्वत आम, कोई रिश्वत नहीं रोक सका। रेट रोजाना
بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہر برا کام یہاں پاکستان میں اپنی قوت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ انجام پاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرور سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.